So now Royal Kings will be eyeing their first win and won the toss, deciding to field first. And now there will be the photo shoot of 6x6 Super Wings. They are happy, and the biggest fan following Sambar has is 6x6 Super Kings. They have come with almost, I think, 100 jerseys. I can see the yellow jerseys floating on this ground everywhere, every nook and corner. And they are the happy team at the moment, leading the Group A with 2 wins in 2 games. And Royal King City is now who are going to set the field. We have seen 2 fielders kept outside. One is at the backward square leg region, one at the mid wicket region. One is a short mid on, mid off, short mid wicket, short cover, short extra cover, and short third man, short fine. These are the fielders placed in the first over for Vicky Boyd. Shahid Sheikh and Rakesh Kah. And starts off by playing that pickup shot on the leg side, which has become a famous shot nowadays. Will be played by many, especially during the power play overs. Shahid is a fantastic player. I've seen such wonderful innings from him in the previous edition of SGPL, where he can play on both sides of the wicket. He can play the short seam, the covers, the point. Oh, magnificent! Magnificent lift down the ground over the long on region for 6 runs. I told you this guy is class, and that's one of the classy shots that he can play. Of 6x6, Deepak joins the team. And there's a wonderful pull shot. No chance. There are 2 fielders. Look at the way. Oh, it has been stopped. No, it goes for the boundary. First, I thought the fielder in the mid-wicket region is going to reach there, but no, the ball wins the race. Very well timed here by Shahid. So very good 2 shots. One straight down where the ball was pitched up, goes with the flow of the bat, and one was a shot of good length, not too short, but he was into the position of the back footer and immediately shifts from the front to the back and plays a fine shot and finds a placement as well. Takes the score to 10. So now little field change. The man in the deep in the backward square leg region has been taken in the cover. So the idea is seem to be bowling full, bowling outside the off stump, and if at all he goes for the drive, there is a protection in the covers. That certainly seems to be deployed at the moment with the way the field has been set. Or is it a trick that has been used here by the bowler? Yes, here, packed offside field. Packed offside field. That's the idea. I told you he's going to bowl full and outside the off stump. The reason is he has got a protection in the deep in the covers. So Shahid is going to shuffle across on the offside and try to play a shot, maybe at the long on region or the wide open space in the square leg. So Vicky Boyd has to be absolutely right, bang on as far as field setting is concerned. I told you, a little error can be costly, and that is one full toss ball just flicked away in the mid-wicket region. This is a classy shot from this man Shahid. One down the ground, one pull shot, and now a flick over the mid-wicket region for 6 runs. Score rapidly moving on to 16. Vicky Boyd is not an easy customer to get runs after. It's inside edge. Very good effort from the keeper. Bending down, trying to take a catch which was slipping away from him.
And very good over here for Shahid and his team Indians. Capital 1 over gone is 17 without loss. So impact player has been introduced. As you know that impact player and also the batting power play. To all the viewers of SGPL watching and listening, me Harish Kakurkar live on 7070. Impact rule has been implemented here in SGPL. So you can use it in both the innings. If you feel that you need an impact player during the bowling, you can use a bowler. And while chasing, you can use a batter. As and when the situation arises for you. So one impact player can be used in the entire match. And here is impact player introduced here by Royal Kings. Sohail, impact player, has been there, but I think once batting power play has been opted, they have certainly prompted for a bowling change. Bhavesh Pawar is going to start from the pavilion end of MCC. Well, just a moment ago, I felt that the crowd was not that much here, but you can see now, once the sun has gone down, this is in the air, but what a lovely shot. He's straight down the ground. There is a fielder, and he's just tried hard, but the ball bouncing a little bit more and goes for 4 runs. This is really good batting here. He's playing with the feel of Royal Kings at the moment. The area of shots. It's not that he is restricted to the shots on the leg side, just like the previous shot over the wide long off region. We have seen him finding the gap. So he can play a lot of shots in the cricket book. As once again played down the ground. Will it be 4 runs? Will it be 4 runs? Or is another 4 runs? They are just placing the fielders, but the ball are just watching the ball going past themselves for 4 runs and 6s. This is once again, this is really good. The ball has raced away to 4 runs, and the score is also racing to 35 runs in just the second over. This is like a bullet train. The bullet train.
such a treat here for the Goan cricket lovers, which the way the shot has been played by the batters. 2 overs gone is 36 without loss, Indians capital. Well, well, if someone has watched cricket and someone has watched this match, it is really interesting that all the 12 balls have been faced by Shahid Sheikh. Not even a single ball strike has been given to Rakesh Kher. And who would like to take the strike? Why would you give the strike when you are striking so cleanly and effortlessly? And Indians capital will be thinking that he keeps on playing all the 36 balls. If he plays all 36 balls, he will see a score of close to 90-100 runs. That's what Indians capital will be hoping. The way Shahid is batting at the moment. It's just like Royal Kings are trying everything here from the cricket books, but nothing is working at the moment. They require a wicket. That's a good shot. The full shot, there is a man in the deep, and the first time I feel that Rakesh Kher is going to come on the strike. So Vicky Boyd, after bowling the first over, has been introduced back into the attack in the third over. They feel that this is a chance, or this is the time where they require a wicket, Royal Kings. If they can't pick a wicket at this moment of the time, then Indians capital are certainly with the start they have got, they are going to go with this momentum and flow and post a huge total on the board, which is going to be difficult to chase in the second innings. Nicely played. Just deft touch on the offside, getting a single, and that's sensible batting. You don't have to do anything heroic at this moment. Heroics are not required, as one of the very good batters, the opener, is playing so beautifully. He's timing the ball, he's finding the gaps, he's also increasing your score and run rate. So why not giving him the chance of playing more deliveries? It's very good here from Rakesh Kher. Once again swinging the bat on the leg side and just getting the single. This has been a very good over here for Royal Kings. Just the 3 singles coming of the first 3 balls, 2 from the bat of Shahid, 1 from Rakesh Kher. And we are watching the captain of Dynamic Royals, Syed Badiuzzama, Bahubadi of Goan cricket, is here, and he's watching this match. He will be defending his title and he will be on the showcase tomorrow. Shot and cut away nicely, but they have placed a man in the deep. So I think the homework has been done. They know very well how Rakesh Kher plays, how Shahid plays. But when you have got so many shots in your book, when you can play the cover drive, when you can play the pull shots, when you can play the switch hits, it becomes difficult for the captain of the fielding side to set a particular field. And that's what Shahid has done so far. Once again, this was little quicker, coming and hurrying onto the batter, and just getting an inside half of the bat, just a single, moves the score to 41. 5 singles of the 5 balls. So Royal Kings, after the momentum lift in the 2 overs, will certainly feel little comfortable here with those 5 singles. So Vicky Boyd comes and bowls a strong over. This is in the air, and oh, what has happened there? That was a chance. First he has put his hands, then maybe he feels that it was out of my reach. Stern looking face from Vicky Boyd and the captain. Well, the chance was there. The chance was given by the left-hander Rakesh Kher to break the partnership, but it was not taken. The chances has to be taken if you want to win the matches. Catches win matches, as they say popularly in the game of cricket. 1 has gone down, 3 overs gone. It's 45 without loss at the moment. Indians capital, and will be changed in the commentary box. It's over to Santosh Karbari.
समझ लेना कुछ और अच्छा लिखा है अपनी तकदीर में करके। और शायद इसीलिए एक खूबसूरत गेंद देखने को मिलते हुए यहाँ देखिए क्या शुरुआत रहा है ये ओवर का। आते ही विकेट निकाल के दी अपनी टीम को, जो बेहद आवश्यक था इस वक्त पर। एक विस्फोटक बल्लेबाज शाहिद आउट होकर वापस जाते हुए नए बल्लेबाज सरफराज नवाज, जाने पहचाने खिलाड़ी, नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए आते हुए एक और विस्फोटक बल्लेबाज का आगमन होता हुआ बैटिंग डिपार्टमेंट में। बहुत कुछ किया है अपने बल्लेबाजी के दम पे ये बल्लेबाज, खास तौर पे ये बल्लेबाज को रोकना बिल्कुल असंभव। जब ये गेंदे खेल लेते, 3-4 गेंदे खेल लेते हैं, तब ये बल्लेबाज को रोकना बिल्कुल असंभव हो जाता है विपक्षी टीम को। क्या करने वाला यहाँ पर बल्लेबाज सरफराज नवाज आते हैं, हल्का सा कट लगाकर सिंगल चुराया और एक सिंगल की मदद से सरफराज नवाज का खाता भी खुलता हुआ। एक सिंगल की मदद से पारी की रन संख्या आगे बढ़ रही है इस वक्त 46 रन पर 1 विकेट। और बहुत बढ़िया ओवर साबित होता हुआ ये सोहेल शेख के लिए। आते ही विकेट निकाल के दी अपनी टीम को, जो बेहद आवश्यक था इस वक्त पर। अब देखिए थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दील लेकर आते हुए डीप पॉइंट के फील्डर को अंदर लेकर आया है और शॉर्ट पॉइंट पर एक फील्डर को लगाते हुए काफ़ी बेहतरीन रणनीति अपनाते हुए कप्तान और एक और बार जोर से मारने की कोशिश जरूर दिखाई दी बल्लेबाज के द्वारा, लेकिन गेंदबाज की यहाँ तारीफ किया जाए, थोड़ा सा धीमी गति की गेंद पे फोकस किया था, शायद उसी के चलते बल्लेबाज को समझने में दिक्कत जरूर पहुंचती हुई यहाँ। और ये देखिए बल्ला तेज घुमाया, गेंद थोड़ा लेट आई और जाकर लगी है शरीर के ऊपर, शायद चोटिल जरूर साबित होते हुए यहाँ बल्लेबाज फर्स्ट एड बॉक्स तो चलो अलेक्जेंडर ने एक इन्वेंशन किया, पेंसिलिन का पहली मर्तबा इंट्रोड्यूस किया था अलेक्जेंडर ने, शायद उसी के चलते यहाँ पर देखिए पेंसिलिन से बहुत कुछ देखने को मिला। यहाँ पर हड़बड़ाहट, ये सेल्फ सुसाइड होने वाला था मेरे ख्याल से। देखिए एक मर्तबा अपने आप को बलिदान दे दिया था, लेकिन देखिए यहाँ पर भाग्य ने साथ दिया बल्लेबाज को। एक और रन ओवर थ्रो के रूप में मिला। कुल मिलाकर 2 रन टीम के खाते में देखने को मिलता हुआ, ये 2 रन की मदद से पारी के रन से क्या आगे बढ़ता हुआ इस वक्त 48, केवल 2 रन दूर है अर्धशतक की आंकड़ा छूने के लिए। इंडियन कैपिटल्स का भी मजबूत स्थिति पे देखने को मिलते हुए। वो कहते हैं ना, हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। अगर इस दुनिया में जीना है तो अपने आप को किसी से कम मत समझो। और एक और बार जोर से मारा हुआ शॉट, देखिए ऑफ स्टंप से काफ़ी दूर जा रही थी गेंद, उस गेंद को खींचकर मारा था लेग साइड की तरफ, केवल सिंगल ही आया इस मरतबा, क्योंकि फील्डर जरूर सजाया था इस एक शॉट के लिए। केवल एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ा यहाँ लेफ्ट हैंडर बैट्समैन को। 1 रन की मदद से अब टोटल स्कोर आ पहुंचा है इस वक्त 49 रन। एकमात्र विकेट खोया है इंडियन कैपिटल्स की टीम ने। शायद इस चीज़ को लेकर जरूर चिंतित है कप्तान रॉयल किंग्स के। ओ बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद के सम्मान जरूर किया यहाँ पर बल्लेबाज ने। 1 रन की मदद से 50 का आंकड़ा पूरा कर लिया है इस टीम ने। इंडियन कैपिटल टीम का 50 रन पूरा होता हुआ। हेलो, meanwhile I'll request the player of the winner of the first game, Rajesh Sote, to come on the stage, and also Alvino Carvalho along and Krishna Satputhy as well, the winner of the previous game, player of the match awardee. First, it is Rajesh Sote with 2 wickets and a very economical bowling. I request Mohsin Ahmed, partner C-Easy, to please come on the stage. Our guest will be giving away the prize to Rajesh Sote, Mr. Mohsin Ahmed. Partner C-Easy is requested to come on the dais. And Rajesh Sote.
I request Mr. Mohsin Ahmed, partner CEZ, to please come on the stage to give away the player of the match award to Rajesh Sote. Rajesh Sote. And request I request Alvino Carvalho to please come. Player of the match in the second game. Wonderful innings of 26 runs. Match winning innings from Alvino Carvalho. पिछला ओवर काफ़ी बेहतर साबित हुआ है रॉयल्स किंग्स टीम के लिए। कप्तान की एक सोच से ज़रूर मैं सहमत हूँ, क्योंकि शुरुआती 3 ओवर में बहुत ज़्यादा रन खर्च कर बैठे थे गेंदबाज, तब लेकर आए थे सोहेल को गेंदबाजी करने के लिए। क्या कमाल की गेंदबाजी रही है सोहेल के द्वारा। पिछला ओवर बहुत बढ़िया घटा है रॉयल किंग्स के लिए। यहाँ पर भी एक अच्छा खासा ओवर शुरुआत होता हुआ, और ये दूसरा रन की मांग, और 2 मांग को पूरा नहीं होने दिया। क्या यहाँ पर विकेट मिलेगी? बिल्कुल विकेट मिलेगी। दूसरा रन की कोई जरूरत, कोई गलती नहीं कि जैसे गेंद को रोका, तेजी से पलट कर थ्रो किया। थ्रो सीधा स्टंप के ऊपर रहा था, शायद उसी की चलते एक रनआउट जरूर हाथ लगा यहाँ। तर आम्ही आता प्लेयर ऑफ द मॅच आमचे मानेस्त हांगा मोहसिन बाब अहमद, पार्टनर CEZ, ताणें आमकां खूब हातभार लायिल्लो आसा। आणि प्लेयर ऑफ द मॅच आल्विनो कार्वालो कोता। दुसऱ्या मॅचीक आल्विनान जबरदस्त अशी 26 रनाची इनिंग्स खेळिल्ली, आणि जे करून ध्रुव वॉरियर्स हे मॅच जिखिल्ले। तर आमचे को पार्टनर CEZ बाब मोहसिन अहमद हांगा प्लेयर ऑफ द मॅच अवॉर्ड दिता। And there is a wicket going down. Indians capital got a good start, but now they are losing wickets in succession. तर आल्विन, तुका ऑपॉर्च्युनिटी आशिल्ली आज जो इंडियेचो प्लेयर असो खेळा अंकुर सिंग, तशेंच ओमकार देसाय हांची नांव आमी आयकल्ली की सुपरस्टार आसा टेनिस बॉल क्रिकेटीन भितर। तांचे भितर ड्रेसिंग रूमान खेळप आनी प्लेयर ऑफ द मॅच अवॉर्ड जिखप कशें दिसता? हय, अंकुर सिंग सारका बरो आमकां मोटिवेशन करता खेळपाक, आनी सा उमेद दिता। सदां पॉझिटिव्ह पॉयंट आसता ताजे, सो एक आमी लकी ताजे वांगडा खेळपाक। आणि बरें दिसता की हो स्टेज केल्लो गोंयच्या, सावथ गोवाच्या आणि गोंयच्या प्लेयरां खातीर, जाची भरपूर तुवें युटिलायज केल्ली आसा, जाची संद। कारण भायले जेन्ना ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स म्हणटात तेन्ना ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्सां मदीं प्लेयर ऑफ द मॅच जिखप ही खूब कठीण जाता, कित्याक तांचे कडेन ते सदांच ओपनिंग येता, 1 डावन येता, नाजाल्यार बॉलिंग येता। पूण तुकाय ओपनिंग बॅटिंग दिली, तुजो टॅलंट पळयलो आनी तुका ओपनिंग बॅटिंग दिली आनी ती घेतली। हय, म्हाका एक उमेद आसली सारकें मॅन ऑफ द मॅच घेवपाक। सगळे मॅन ऑफ द मॅच आसले, पूण हो आसूना म्हज्या लायफाक, सो थँक्यू। आनी बरी ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी म्हाका ह्या टोर्नामेंट सावथ गोवा बरो टोर्नामेंट ऑर्गनायज केलो, आनी आमकां खेळपाक संदी मेळ्ळी। तर हो आशिल्लो आल्विन कार्वालो, म्हणटा की आपल्याक प्लेयर ऑफ द मॅच फर्स्ट टायम मॅच पेलाक मेळ्ळा, आनी एक मोठो मोमेंट ताज्या खातीर की येदे फावटी जेन्ना प्लेयर खेळटा जे इंडिया टिमीक खेळिल्ले आसात, अख्खे व्हडले व्हडले टुर्नामेंटाक खेळटात, आनी तांच्या मदीं रावन हांगा प्लेयर ऑफ द मॅच जिखप। आल्विन, तुवें तुजें नांव व्हड केलें, तितलेंच म्हाका दिसता कुडचडकरांचें नांव व्हड केल्लें आसात, कारण हांगा तुवें टुर्नामेंटाक प्रायज जिखप हें म्हाका दिसता आमचोय मान वाडयल्लो आसा। परबी तुका आल्विन। और धन्यवाद हरीश सर, काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी लगातार देखने को मिलते हुए। शुरुआती 3 ओवर में बहुत ज़्यादा ही रन खर्च कर बैठे थे, लेकिन जिस तरीके की गेंदबाजी रही है पिछली 2 ओवर में, वहाँ की तारीफ करनी होगी कप्तान की। और अच्छा खासा रणनीति बनाते हुए कप्तान आखिर के डेप्थ ओवर में बढ़िया गेंदबाजी का मजा आ रहा है। एक और मरतबा देखने को मिलता हुआ यहाँ पवन भाई काफ़ी खूबसूरत गेंदबाजी कर रहे, लगातार बल्लेबाज को सोचने में मजबूर कर दिया है एक गेंदबाज ने। ये देखिए थोड़ा सा लूज गेंद, और उस गेंद पे पूरी तरह से टूट पड़े हैं। कहां भेजा है गेंद को? ये हवाई यात्रा पे भेजा था गेंद को। ये यात्रा शुरू हुई थी
मरगांव से और जाकर खत्म हुई है सिंगापुर में। एक हफ्ते के बाद वापस लौटने वाली है गेंद, भूल जाइए इस गेंद को, ये सैनिटाइज होकर वापस आएगी गेंद। ये 6 की मदद से पारी की रन संख्या आगे बढ़ता हुआ इस वक्त 58। 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ है पहले इनिंग्स में। टोटल स्कोर की यहाँ बात करें तो 58 रन पर 3 विकेट, 58 रन पर 3 विकेट खो बैठी है टीम इंडियन कैपिटल्स। इंडियन कैपिटल्स को अब सोच में तब्दील लेकर आना है, क्योंकि देखिए केवल 6 गेंद शेष है इनिंग्स की। कम से कम 15-20 रन तो और जोड़ना ही है, खास तौर पे रॉयल किंग्स टीम के विरोध जब भीड़ रही हो टीम, तब ना अच्छे खासे स्कोर बोर्ड तक जरूर पहुंचना है, क्योंकि रॉयल किंग्स में भी अच्छे खासे तजुर्बे हैं। वो कहते हैं ना हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है भाई। देखो हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। जैसे कि मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी में राजा बन नहीं सकता, इसीलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। शायद अब गेंदबाजी में तब्दील जरूर लेकर आएंगे कप्तान। एक जबरदस्त सोच कप्तान की, क्या कमाल का सोच रचा कप्तान ने पिछले 2 ओवर में। एक अच्छा खासा टेक्निक अपनाते हुए अपनी टीम के लिए वो बेहतरीन बोले तो फायदामंद साबित हुआ है। पिछला 2 ओवर में अच्छी खासी कमबैक किया है टीम ने। नहीं गेंद और पुराना बॉल नहीं मिल सकता, क्योंकि बहुत सारे गेंदें घूम हो चुकी है। बल्लेबाज न्यू बॉल आप ले सकते हैं, तो चलो अब नए गेंद का इस्तेमाल आप कर सकते हैं यहाँ। यूनुस आखिरी 6 गेंदें शेष पहले इनिंग्स की। अब यूनुस को लेकर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। कितना प्रभाव छोड़ सकते हैं आखिर की ओवर में, ये काफ़ी डिसाइडिंग ओवर रहेगा मेरे ख्याल से। इस एक मैच का डिसाइडिंग ओवर रहेगा ये ओवर। अगर 6 गेंद में कम से कम 15-20 रन आ भी गए तो मेरे ख्याल से ये बोनस रन रहेगा इंडियन कैपिटल्स टीम के लिए। स्वप्नेश बढ़िया शॉट लगाने की कोशिश में, बड़े शॉट लगाने गए, ठीक से बल्ले पे आए नहीं। लीडिंग एज लगा गेंद का, काफ़ी देर तक हवा में रही गेंद और नीचे बिल्कुल फील्डर तैयार थे इस कैच को लपकने के लिए। और एक और विकेट का पतन होता हुआ यहाँ इंडियन कैपिटल्स टीम का, 4था विकेट का पतन। अब 6ठे नंबर पर बैटिंग करने के लिए एक और छोटे कद के खिलाड़ी मैदान पर प्रवेश करते हुए महेश को आना पड़ा है 6ठे नंबर पर बैटिंग करने के लिए। वो गेंदबाज की यहाँ तारीफ किया जाए, क्या कमाल की सोच रचा, अपसेट से आक्रमण जारी रखा था और देखिए लेंथ को थोड़ा सा पीछे खींचा था, शायद उसी के लिए शायद वही एक कारण है कि बल्लेबाज को समझने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर पहुंची। जैसे बड़े शॉट लगाने गए, बल्ले का लीडिंग एज लगकर गेंद हवा में रही थी और नीचे देखिए फील्डर बिल्कुल तैयार थे कैच को लपकने के लिए। अच्छा कैसा कैच पकड़ते हुए पॉइंट के फील्डर। ओवर की दूसरी गेंद, बढ़िया गेंद, लगातार ऑफसेट से आक्रमण जारी रखते हुए एक अलग सोच दिखाई देती हुई गेंदबाज यूनुस की। देखिए विकेटों से बाहर रख रहे गेंद को, बल्लेबाज की पहुंच से दूर। शायद एक ये एक चीज को लेकर जरूर चिंतित होंगे बल्लेबाज, क्योंकि लगातार दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर रनआउट कर खतरा मंडरा रहा था लास्ट स्ट्राइक एंड पर, फिर भी 2 रन बटोर लिया दोनों ने मिलकर। अच्छी तालमेल की मदद से 2 रन पूरा किया है दोनों ने मिलकर। ये 2 रन की मदद से पारी के रन संख्या आगे बढ़ता हुआ इस वक्त 60 रन। 4 विकेट नुकसान पर थोड़ा सा हट कर खेलने की कोशिश, नकल बॉल और एकमात्र रन मिलेगा, वो भी लेग बाइज के रूप में आया है। ये रन एक टीम के खाते में चला जाएगा और बल्लेबाज को यहाँ रन नहीं मिला है, क्योंकि ये गेंद पे
गेंद सीधा जाकर लगी थी घुटने पे, और उसके चलते केवल टीम को ही यहाँ रन मिला। ये एक रन की मदद से अब टोटल स्कोर आ पहुंचा है इस वक्त 61 पर 4 विकेट। और चाल का खेलने की कोशिश है, बल्ले का लीडिंग एज और विकेट कीपर के पीछे देखिए थर्डमैन के फील्डर बिल्कुल तैयार थे कैच को लपकने के लिए। एक और विकेट, आधे के आधे बल्लेबाज डगआउट में नजर आते हुए। क्या ओवर घटा है ये रॉयल किंग्स टीम के लिए। मैंने कहा रहेगा करके, शायद ये डिसाइडिंग ओवर हो सकता है इस एक फाइनल, ये एक अहम मैच का फाइनल ओवर, काफी बढ़िया ओवर इस इनिंग्स का। अब नए बल्लेबाज सरफराज, एक और नए बल्लेबाज को आना पड़ा है बैटिंग करने के लिए। नंबर 7 पर बैटिंग करने के लिए सरफराज और गेंदबाज यूनिस अभी बढ़िया गेंदबाजी करते हुए ओवर में केवल 2 ही रन खर्च किया है और 2 सफलता हाथ लगी है गेंदबाज यूनिस को। इससे ये पता चलता है कि डेथ ओवर में कैसे गेंदबाजी किया जा सकता है। कोई इनसे सीखे क्या बेहतरीन लाइन और लेंथ को बरकरार रख रहे हैं, लगातार कंसिस्टेंसी अपनी लाइन और लेंथ में। इम्पैक्ट प्लेयर सरफराज का आगमन हुआ है बैटिंग डिपार्टमेंट में। ये इनिंग्स की आखिरी गेंद लेकर बिल्कुल तैयार होते हुए गेंदबाज इनिंग्स दूर एंड से छोटा रन अप लेकर आए थे और ये लाजवाब कनेक्शन मिला। फिर भी देखिए उतने ही नजाकत भरी हुई फील्डिंग, आक्रामक शैली की फील्डिंग प्रदर्शन देखने को मिलता हुआ। और ये लीजिए दूसरा रन लेने की मांग और मौक को पूरा नहीं होने दिया यहाँ पर फील्डर ने। एकमात्र रन मिलेगा ओवर की अंतिम गेंद में, इनिंग्स की आखिरी गेंद में एकमात्र रन मिला है। इनिंग्स की समाप्ति, टोटल स्कोर 62 पर 6 विकेट। हेलो, थैंक यू संतोष। आने वाला मैच हो रहा है SI इंडियंस और ध्रुव वॉरियर्स इन गोवा, इन 2 टीमों के बीच में। दोनों टीम कैप्टन आपके टीम लिस्ट और टॉस के लिए संपर्क करें। आने वाला मैच हो रहा है ध्रुव वॉरियर्स गोवा और SI इंडियंस, इन 2 टीमों के बीच में। दोनों टीम कैप्टन टॉस के लिए संपर्क करें। तो टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए 63 रनों का। क्या बढ़िया शुरुआत रही थी ओपनिंग जोड़ी के बीच में, 46 रनों की साझेदारी बनी थी। 39 रन बनाए थे शाहिद शेख ने, 4 चौके 3 छक्के लगाए थे अपने इनिंग में, लेकिन उनके बाद कोई बड़ी इनिंग देखने को नहीं मिली। और खास करके दाद देनी पड़ेगी आखिरी ओवर में। 5वें ओवर में पवन केनी ने सिर्फ 7 रन दिए, 2 विकेट चटकाए। और आखिरी ओवर यूनिस दलैत जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन स्पेल किया, 3 रन 3 विकेट चटकाए। और वहीं पर थोड़ा सा पीछे हो गई मैदान पर। लेकिन देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी होती है मैदान पर रॉयल किंग्स क्रिकेट टीम की। टारगेट है 63 रनों का और फील्डिंग के लिए मैदान पर उतर चुकी है
इंडियन कैपिटल्स क्रिकेट टीम। चलिए ओपनिंग जोड़ी चलिए जल्द से जल्द मैदान पर। ओपनिंग जोड़ी चलिए जल्द से जल्द मैदान पर। 63 रनों का टारगेट है। 6 ओवर का मैच है। एक ओवर शुरू का पावर प्ले में, दूसरे से 5वें ओवर तक एक बैटिंग पावर प्ले का ओवर। एक अच्छा टोटल है। सामने बहुत अच्छी शुरुआत रही थी, खास करके शाहिद शेख ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी। तब लग रहा था कि ये टीम और आगे बढ़ेगी, लेकिन वहीं पर 5वें 6ठे ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी रही। तो चलिए ओपनिंग जोड़ी जल्द से जल्द मैदान पर। और आने वाले मैच के लिए एक बार फिर से हम कॉल कर रहे हैं। आने वाला मैच हो रहा है SI इंडियंस और ध्रुव वॉरियर्स इन गोवा, इन दो टीमों के बीच में। और कैप्टन पुनाजी कलंगुटकर प्लीज आइए कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। पुनाजी कलंगुटकर। ओपनिंग जोड़ी मैदान पर निकलती हुई। आज पहले शुरू के मैच में 46 रन बनाए थे बल्लेबाजी में पवन केनी ने, वही बल्लेबाजी के लिए और उनका साथ देते हुए रजत कुडालकर, जिन्होंने भी बेहतरीन इनिंग खेली थी अपने पहले ही मैच में। 63 का टारगेट है और गेंदबाजी के लिए अनुराग आ चुके हैं पहला ओवर लेकर। काफ़ी दूर दूर से इस मैदान पर खिलाड़ी, और ये खिलाड़ी जो पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच का हकदार रहा था, वो दिल्ली से बिलोंग करता हुआ इस मैदान पर अनुराग पावर प्ले में खुद का पहला ओवर लेकर, और जब देखना होगा 63 रनों के जवाब में किस तरह से बल्लेबाजी होते। सामने ओपनिंग जोड़ी मैदान पर रजत कुडालकर और उन्हीं के साथ पवन केनी, और बॉलिंग बार पर अनुराग संसार। बिल्कुल धमाका दिल्ली, बिल्कुल उनके टीम का नाम है। दो फील्डर है बाहर, एक वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, दूसरा है लगभग वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, और अंपायर का इशारा खेल की शुरुआत होने का। पवन केनी स्ट्राइक पर सामना करते हुए पावर प्ले के पहले ओवर की पहली गेंद का। अच्छी गेंद इस बार, हल्के से मोड़ा गेंद को शॉर्ट पाइन लेग पर फील्डर एक सिंगल के लिए निकले। दोनों बल्लेबाज अपने अपने छोर पर सुरक्षित। 1 रन के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ मैदान पर रॉयल किंग्स क्रिकेट टीम का। कैप्टन आइए प्लीज, SI इंडियंस क्रिकेट टीम कैप्टन। कैप्टन आ चुके, ध्रुव वॉरियर्स गोवा क्रिकेट टीम के कैप्टन आ चुके, तो प्लीज आइए आप टॉस के लिए जल्द से जल्द। सामने रजत कुडालकर स्ट्राइक पर सामना करते हुए अनुराग संस्कार की गेंदबाजी का। ऑन साइड पर एक शॉट खेलना चाहते थे, देखना होगा। एक सिंगल बढ़ गया, लेग बाइज का इशारा अंपायर का। अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में अनुराग संसार की, और सामने एक बार फिर से पवन केनी। एक पर खुद के व्यक्तिगत, एक लेग बाइज, टोटल स्कोर 2, टारगेट है 63 का। शफल होकर ऑन साइड पर एक जोरदार अपील, विकेट कीपर का बल्ले का भीतरी किनारा लेते हुए गेंद विकेट कीपर के हाथों में, कैच को पकड़ा और बड़ा विकेट, पहला विकेट वापस। पवन केनी आउट होकर वापस सिर्फ 1 रन बनाकर टीम का स्कोर 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। डीजे जिस खिलाड़ी ने पहले मैच में शुरू के 46 रन की एक बहुत ही अच्छी शानदार बल्लेबाजी की थी, बड़ी इनिंग खेली थी, लेकिन उनका विकेट चला गया, और अच्छी गेंदबाजी भी बिल्कुल दाद देनी पड़ेगी। अनुराग संस्कार जो अपने बॉलिंग बार पर, नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए रजत कुडालकर का साथ देने के लिए शंकर गांवकर न्यू बैटर मैदान पर।
ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद चली गई विकेट कीपर को बीट करते हुए, फाइन लेग बाउंड्री पर गेंद चली गई। मूल्य रन स्कोर के खाते में। बढ़िया शॉट इस बार कारपेट के साथ, एक अच्छा ऑन ड्राइव, लॉन्ग ऑन पर फील्डर एक सिंगल तेजी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। शंकर गावकर एक सिंगल के साथ अपना खाता खोलते हुए और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन पर पहुंचा, 1 विकेट के नुकसान पर। 63 रनों का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए। और आने वाला मैच हो रहा है ध्रुव वॉरियर्स गोवा और एसआई इंडियंस, इन दो टीमों के बीच में। एक लंबा रनअप, थोड़ा सा तिरछा रनअप अनुराग सरस्कार का। और पटकी हुई शॉर्ट पिच गेंद और बिल्कुल वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। शॉर्ट पिच बाउंसर ज्यादा उछालती, कंधों का थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल किया था जो लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। और इस बाउंसर के लिए बिल्कुल वाइड बॉल के साथ 1 रन मिला स्कोर के खाते में। स्कोर आगे बढ़ा 8 रन पर। तो आने वाले मैच का टॉस हो रहा है हमारे बिल्कुल जो कि बगल में। और शॉट ऑन पोल, बहुत ही बेहतरीन शॉट, डीप मिड विकेट पर गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। डीजे थैंक यू डीजे, धन्यवाद। ध्रुव वॉरियर्स गोवा क्रिकेट टीम ने टॉस जीता है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। थैंक यू सर। तो पहले फील्डिंग का फैसला किया है ध्रुव वॉरियर्स गोवा क्रिकेट टीम ने और बल्लेबाजी को मौका दिया एसआई इंडियंस क्रिकेट टीम को। इसी बीच में एक बेहतरीन शॉट रजत को डालकर के बल्ले से 6 रन के लिए टीम का स्कोर आगे निकलता हुआ टोटल 14 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। टारगेट है सामने जीत के लिए 63 रनों का और 63 रनों का जवाब देते हुए 1 विकेट जरूर खोया है लेकिन रन भी बन चुके हैं स्कोरबोर्ड पर। एक अच्छी शुरुआत के साथ टोटल 14 रन। आने वाले 5 ओवर 30 गेंदों का खेल बाकी और 49 रन अभी भी जीतने के लिए। बहुत ही शानदार लाइव टेलीकास्ट हो रहा है 70 की ओर से। और एक बार जो दर्शक जुड़ चुके हैं इस मैदान पर, आप सभी का स्वागत है। जो दर्शक यूट्यूब पर जुड़ चुका है साउथ गोवा प्रीमियर लीग के साथ, आज पहले दिन में जो कि बिल्कुल दर्शकों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई देती हुई, यूट्यूब पर हो या मैदान पर हो। रजत को डालकर जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर, स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज है शंकर गावकर। और सामने गेंदबाजी में परिवर्तन, मुख्तार कादरी आ चुके हैं टीम के कप्तान अब गेंदबाजी करने के लिए। 1 ओवर का खेल समाप्त हुआ। बैटिंग पावर प्ले का इशारा अंपायर का। जो दूसरा से 5वें ओवर तक आप ले सकते हैं, लेकिन इस बार पहले पावर प्ले के समाप्ति के बाद दूसरा ओवर जो जारी दिखाई देता हुआ बैटिंग पावर प्ले का। और मुख्तार कादरी दाहिने हाथ से राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार्क पर। सिंगल के लिए निकले दोनों। हेलो, 1 रन के, हेलो डीजे, हेलो, 1 रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। थैंक यू सुरभि डीजे, धन्यवाद। रजत को डालकर एक बार फिर से स्ट्राइक पर। पिछले ओवर में एक बहुत ही शानदार शॉट लगा चुके हैं मिड विकेट बाउंड्री पर। और थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन मैदान पर करते हुए मुख्तार कादरी वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक लॉन्ग अप बाउंड्री पर फील्डर, एक डीप एक स्ट्राइक ओवर बाउंड्री पर फील्डर।
इस बार गेंद को हाफ वाले पर लेकर एक बहुत ही सुंदर कवर ड्राइव, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, एक अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो और सिर्फ एक ही रन मिल गया स्कोर के खाते में रजत कुडालकर को। सामने एक बार फिर से शंकर गांवकर, अगली गेंद मुख्तार कादरी की, स्कोर आगे बढ़ा 16। बहुत अच्छी गेंद, लेग कटर, लेग ब्रेक, टिप्पा खाने के बाद कट होकर बाहर की तरफ निकली, खड़े खड़े एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लॉन्ग ऑन पर गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। एक अच्छा मुकाबला हो रहा है मैदान पर। इस बार अच्छा शॉट, थोड़ा सा ऑफ साइड पर शफल होकर अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, लेकिन लगभग अपने क्रीज में आखिर में सुरक्षित रजत को डालकर एक सिंगल को बनाते हुए एक अच्छी फील्डिंग, बैकअप बहुत अच्छा था स्लिप पर फील्डर का और फिर से एक रन पर संतुष्ट होना, एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 17 रनों पर, एक विकेट पर, 17 लॉस ऑफ 1 विकेट। खेल दूसरे ओवर का जारी मैदान पर, 63 रनों का टारगेट है मैच को जीतने के लिए। ओवर पिच गेंद सामने उड़ाया, लॉन्गा पर फील्डर और इसी के साथ एक और कीमती विकेट, रजत कुडालकर आउट होकर वापस दूसरे विकेट के रूप में। ओवर पिच गेंद हाफ वॉली पर लेकर एक अच्छा शॉट था, लेकिन लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर तैनात था और दूसरी सफलता मिलती हुई टीम को। डीजे टॉस हो चुका, ध्रुव वर्गीस गोवा क्रिकेट टीम ने टॉस जीता है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का, फील्डिंग का फैसला और बल्लेबाजी को मौका दिया है एसआई इंडियंस क्रिकेट टीम को। आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, इस बार थोड़ा सा अधूरी हिस्सा लगा, मिस फील्डिंग जरूर रही थी, बैकअप हो रहा था, पहला रन दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज, जब तक थ्रो पहुंचता विकेट कीपर के हाथों में थोड़ी सी ढिलाई दिखाई दी फील्डिंग में और उसी का फायदा उठाते हुए देखते देखते बिल्कुल सिंगल को साथ दूसरा रन भी मुकम्मल किया। अविनाश गावस ने अपना खाता खोला 2 रन के साथ, टीम को आगे बढ़ा इन 2 रन के साथ। 19 रन पर टोटल स्कोर, 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन 2 विकेट पर। आने वाले अभी भी 4 ओवर का खेल बाकी है मैच का, यानी 24 गेंदों का। 24 गेंदों में 44 रन। अब रनअप के साथ अगली गेंद लेकर इस बार जोरदार शॉट खेलना चाहती थी, थोड़ी सी पुलर लेन की गेंद, नॉन स्ट्राइकर इन पर खतरा, लेकिन निशाना नहीं लगा। विकेट कीपर ने कोशिश जरूर की थी,
एक सिंगल इसी बीच में स्कोर के खाते में। शॉर्ट पाइन लेग पर फील्डर, लेकिन उससे पहले विकेट कीपर तेजी के साथ गेंद को कलेक्ट करते निशाना लगा चाहत, लेकिन लेग बाइट के साथ एक रन मिल गया स्कोर के खाते में। अच्छी गेंदबाजी हो रही है मैदान पर। दो कीमती विकेट, पवन केनी और रजत गुडालकर, ये ओपनिंग जोड़ी वापस। ओवर पिच गेंद हवा में, लॉन्ग अप पर फील्डर देखना होगा, डीप लॉन्ग अप पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर। 6 रन के लिए बहुत अच्छी कोशिश थी लॉन्ग अप बाउंड्री पर फील्डर की, लेकिन बिल्कुल गेंद से थोड़ा सा दूर और गेंद चली गई 6 रन के लिए। डीजे बहुत अच्छी कोशिश थी दीपक की, छोड़ा, जाने दिया तेज गेंद ऑफ स्टंप पर, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में, देखते रह गए बिल्कुल थोड़ा सा अंपायर की ओर, लेकिन आप बहुत अच्छी गेंद थी, तेज गेंद थी इस बार। 6 रन बहुमूल्य स्कोर के खाते में, और इन 6 रन के साथ स्कोर टोटल हो चुका है 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर। खेल तीसरे ओवर का मैदान पर चलता हुआ, टारगेट है टोटल 6 ओवर में 63 रनों का। इस बार बॉलर के पास से गेंद को ड्राइव किया, लॉन्ग अप पर फील्डर गेंद को उठाते तो ओडिशा पहले प्रयास में शायद गेंद हाथों से छूटी थी, लेकिन अपने आप को संभाला, तुरंत गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया और एक रन फिर से जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। 2 विकेट वापस, पवन केनी 1 पर 7 पर एक छक्का लगाकर, रजत गुडालकर 3 पर बल्लेबाजी कर रहे, शंकर गांवकर और 9 रन पर अविनाश गावस। अनुराग सरसार लेफ्ट आर्म ओवर विकेट अपने बॉलिंग मार्क पर अगली गेंद लेकर। इस बार ब्लॉकल में गेंद, लेकिन अच्छा शॉर्ट पाइन लेग पर फील्डर, शायद थोड़ी सी बीचों बीच नहीं लगी, बाहरी किनारा लगा, लेकिन रन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे मैच में, क्योंकि 2 अच्छे विकेट खो चुके हैं, ओपनिंग जोड़ी आउट हो चुकी है। 3 ओवर का टोटल खेल समाप्त हुआ और 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर 28 रन। 63 का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए। आने वाले 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी है, यानी 18 गेंदों का, और 18 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 35 रन। देखना होगा किस तरह से मुकाबला समाप्त होता है दोनों के बीच में। 18 गेंदे 35 रन। कमेंट्री बॉक्स में गेंदबाजी में बदलाव, और कमेंट्री बॉक्स में एक बार जुड़ जाते आइए आगे का विवरण सुनाते हुए संतोष कारबारी के साथ। अर्ज किया है, कभी हार मत मानो, धैर्य रखो, क्योंकि बड़ा काम और बड़ा नाम होने में अक्सर समय लगता है। मकान बनने से ज़्यादा समय महल बनने में लगता है, जैसे कि बीज को फसल बनने में समय लगता है। अब समय तो ज़रूर लग रहा है यहाँ। अब देखने वाली बात है कि 18 गेंदों में क्या 35 रन जोड़ पाएंगे दोनों बल्लेबाज, ये प्रश्न चिन्ह रहेगा। भविष्य में बहुत कुछ होने वाला है। वर्तमान में स्क्रीज पर खड़े हैं बल्लेबाज शंकर स्ट्राइक पर, और उसका साथ निभाते हुए अविनाश गेंदबाजी का मोर्चा संभाल रहे हैं। महेश थोड़ी सी भी तकदीर, हाँ, बॉलिंग में एक और विकल्प जरूर चुना गया यहाँ पर। अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या ये ओवर डिसाइडिंग रह सकता है इस मैच का। बिल्कुल, देखिए 12 रन औसत से रन बनाने होंगे रॉयल किंग्स टीम को ये मुकाबले को जीतने के लिए। और की पहली गेंद में जबरदस्त प्रहार देखने को मिला बल्लेबाज के द्वारा। अच्छे खासे बैक लिफ्ट के साथ गेंद को खेला था लॉन्ग ऑन इलाका पर। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर होने के नाते केवल सिंगल ही मिला है शुरुआती गेंद में। एक मजबूत पकड़ बनाते हुए गेंदबाज महेश, अच्छा ओवर घटेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि शुरुआत बहुत बढ़िया रहा है ओवर का। जब गेंदबाज इक्के दुक्के से शुरुआत करते हैं तब मनोबल जो है वो अमूमन ऊंचा नजर आता है गेंदबाज में। बड़ा रनअप लेकर आते हुए गेंदबाज महेश फिर से अपनी बॉलिंग मार्क से ओवर की दूसरी गेंद लेकर। ये देखिए फॉलो थ्रू कितना जबरदस्त रहा है गेंदबाज का।
फॉलो थ्रू भी बहुत बढ़िया, सीधा लाइन से भागकर आए थे। शायद ये एक बेहतर साबित हुआ है गेंदबाज के लिए। एक अच्छा खासा रन अप जरूर देखने को मिला और अच्छी खासी गेंद भी साबित होती हुई। एकमात्र रन मिला पिछली गेंद में, लगातार 2 सिंगल। अब प्रेशर फिर से पड़ चुका है बल्लेबाजी टीम के ऊपर, क्योंकि शुरुआत उतना बेहतर नहीं रहा इस ओवर का बल्लेबाजी टीम के लिए। यहाँ सोचने में मजबूर कर दिया है और ले लीजिए, क्या खूबसूरत प्रहार रहा है। गेंद एकदम स्लॉट में पार्क किया, पार्किंग लॉट में, 6 रन के लिए। सफल सिर्फ सपने के लिए मत बनो, अरे जनाब सफल सिर्फ सपने के लिए मत बनो, उनके लिए बनो जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। और इसीलिए तो मैं बार बार ये कहता हूँ, सपना एक देखो मुश्किलें 1000 इकट्ठा हो जाएगी, सपना एक देखो मुश्किलें 1000 आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। अब कामयाबी शोर मचा रहा है, एक और बार भेजा है गेंद को आर पार सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए। पिछली 2 गेंद में पूरा डजन रन मिला है बल्लेबाजी टीम को। क्या खूबसूरत नजारा रहा है यहाँ। और इसी बीच देखिए बिल्ली आ रही है और इसे थोड़ी सी कन्वर्ट कर देते हैं भाई। जब वक्त आगे फेर लेता है तब शेर को कुत्ता भी घेर लेता है। निराशा मत हो मेरे दोस्त, जब वक्त आके फेर लेता है तब शेर को कुत्ता भी घेर लेता है। और इसीलिए तो मैं बार बार ये कहना चाहूंगा, देखिए बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। बिल्कुल, जब चाय में जमा होता है तो क्या करते हैं, कुछ लोग हटाते हैं और पी लेते हैं। अरे भाई मुसीबत आई है तो हटाइएगा और आगे बढ़ेगा, यकीन मानिए। और ये देखिए थोड़ा सा रनअप में हिचकिचाहट, शायद कमेंट्री की वजह से ये एक थोड़ा सा रुकावट जरूर आया होगा। और रॉयल किंग्स काफी मजबूत स्थिति पे है। ये ओवर में खूबसूरत नजारा देखने को मिला बल्लेबाजी के द्वारा। ओहो क्या खूबसूरत प्रहार रहा ये, पॉइंट आउट कवर के बिल्डर के बीच में गेंद अंदर आते हुए निकल पड़ी है 4 रन के लिए। अब ओनर भी खुश हुए हैं, तो चलो मैनू भाई दौलत है लेकिन नाम खुद कमाना पड़ता है। दौलत विरासत में मिलती है लेकिन नाम खुद कमाना पड़ता है। मैनू भाई वो तालाब है, यहाँ शेर भी पानी पीने आए, सर झुकाना पड़ता है। अब शेर पानी पीने भी आए तो सर झुकाना पड़ रहा है, क्योंकि रॉयल किंग्स की टीम तररम पम पम। ओहो उड़ाया गेंद को हवा में और उतने ही जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा। क्या फील्डिंग रही, ये दृश्य देखिए एक और बार, बार देखो, 1000 बार देखो, ये देखने की चीज थी भाई। क्या कमाल का डाइव लगाया यहाँ फील्डर ने, एक मर्तबा विराट कोहली की याद दिला दी। अफगानिस्तान बनाम इंडिया के बीच में T20 मुकाबला चल रहा था और उसमें विराट कोहली ने एक जबरदस्त डाइव, जबरदस्त जंपिंग लगाकर छक्का को रोका था। शायद वो एक चीज को लेकर टीम इंडिया को देखिए एक जीत मिली सुपर ओवर में। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर समाप्ति के बाद पारी की रन संख्या 47 रन, केवल 16 रन चाहिए जीतने के लिए। 12 गेंदे 16 रनों की जरूरत। और रिप्ले में आप देख सकते हैं, देखिए रिप्ले एक मर्तबा देख लीजिए, ओ क्या जबरदस्त डाइव रहा है, लगभग 3 मीटर की जंपिंग यहाँ पर देखने को मिली। वाकई बेहतरीन सेव है मेरे ख्याल से, क्या कहेंगे सर आप ये? बिल्कुल कह रहे हैं हमारे आदरणीय अशोक नायक सर, जो कि गोवा के मशहूर कमेंटेटर के नाम से जाना जाता है। क्या कमाल के ओवर, क्या कमाल का ये जो जंपिंग देखने को मिला फील्डरिंग के द्वारा। अब गेंदबाजी का मोर्चा कौन संभाल रहे? राकेश, और ओवर की पहली गेंद वाकई बेहतरीन साबित होती हुई। ऐसा नहीं कि आप 16 रन डिपेंड नहीं कर सकते, अरे भाई डिपेंड कर सकते हैं, परंतु क्षमता रखना चाहिए, अपने ऊपर भरोसा जिताना है यहाँ गेंदबाज को।
अच्छी खासी गेंदबाजी करनी होगी, बल्लेबाज से गेंद को दूर रखना है, अच्छी खासी टेक्निक्स अपनाना होगा इस एक डेथ ओवर में। शुरुआत बहुत बढ़िया रहा है ओवर में, ये ओवर की शुरुआत डॉट से हुई है। ओवर की दूसरी गेंद अतिरिक्त उछाल देखने को मिला, बल्लेबाज को बड़े शॉट लगाने में मजबूर कर दिया था, लेकिन देखिए ऊंचाई की वजह से थोड़ी सी दिक्कत जरूर पहुंचती हुई बल्लेबाज को। शुरुआती 2 गेंद में कोई रन नहीं मिला है, अब प्रेशर पड़ चुका है बल्लेबाजी टीम के ऊपर। थोड़ा सा हिचकिचाहट रनअप में एक और मर्तबा वापस बॉलिंग मार्क पर आना होगा गेंदबाज राकेश को। राकेश शुरुआती 2 गेंद में मजबूत पकड़ बना लिया है ये डेथ ओवर में। अब देखिए थोड़ी सी सोचने में मजबूर कर दिया है दोनों बल्लेबाज को। अब 10 गेंद में जीतने के लिए 16 रन चाहिए, 10 गेंदे 16 रनों की जरूरत रॉयल किंग्स टीम को। थोड़ा सा हट कर खेलने की कोशिश की, बल्लेबाज से पहुंच से दूर थी गेंद, वाकई बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा। और ये देखिए भाई पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है रॉयल किंग्स का खेमा, क्योंकि इंडियन कैपिटल्स टीम की पलड़ा भारी रहा है ओवर में। मोमेंटम थोड़ा सा शिफ्ट होने लगा है इंडियन कैपिटल्स की ओर। और एक और बढ़िया गेंद, एक और सटीक लाइन और लेंथ देखने को मिलता हुआ, बाहरी किनारा बल्ले का, मिल गई विकेट। लगातार दबाव मेंटेन करके देखा, शायद वो एक प्रेशर की वजह से यहां विकेट गंवाना पड़ा है बल्लेबाज को। और तीसरा सफलता हाथ लगी है इंडियन कैपिटल्स टीम को। अब नए बल्लेबाज नंबर 5 पर बैटिंग करने के लिए भावेश पवार को आना पड़ा है। वाह क्या ओवर रहा है, राकेश कहार का कमाल का ओवर देखने को मिलता हुआ। अभी तक कोई रन नहीं खर्च किया है ओवर में, ये देखिए कितनी किफायत गेंदबाज साबित हुए हैं अपनी टीम के लिए। कंजूसी गेंदबाजी देखने को मिलते हुए, बाकी बेहतरीन लाइन और लेंथ देखने को मिलता हुआ डेथ ओवर में। अब 8 गेंद में जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत। अभी तक कोई रन नहीं देखने को मिला है ये ओवर में। काफी बढ़िया ओवर साबित होता हुआ इंडियन कैपिटल्स टीम के लिए निर्णायक ओवर साबित हो रहा है ये। 4 गेंद में कोई रन नहीं खर्च किया है गेंदबाज ने, इससे पता चलता है कि इनमें कितनी एबिलिटी है। देखिए कितना सामर्थ्य है एक खिलाड़ी में। डेथ ओवर लेकर आए थे, मैं मानता हूं कि यहाँ प्रेशर जरूर था, परंतु कोई प्रेशर महसूस नहीं होने दिया है अपने आप पर ये गेंदबाज राकेश ने। कमाल का ओवर, अभी तक कोई रन नहीं। अब 8 गेंद में जीतने के लिए चाहिए 16 रन। और ये गेंद भी बढ़िया रहा है, शायद यहाँ एकमात्र रन मिलने वाला है। बिल्कुल केवल एक ही रन मिला 5वां गेंद में। ओहो ये देखिए अब कहां तक आकर खड़ा हो गया है मुकाबला। 7 गेंद में जीतने के लिए 15 रन चाहिए। थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दील लेकर आते हुए, हर बार टेक्निक्स अपनाते हुए दोनों बल्लेबाज के अगेंस्ट काफी बेहतरीन कप्तानी मैं कहूंगा। ये ओवर में बहुत बढ़िया कप्तानी रही है। कप्तान अपना अहम भूमिका निभाते हुए इससे एक मुकाबले में मुख्तियार कादरी ओह एक और बढ़िया गेंद, वाह छा गए गुरु। सलूट ठोकते हैं खिलाड़ी को, क्या प्लेयर है, जबरदस्त गेंदबाजी, इसे कहते हैं अटैकिंग बॉलिंग। अब 6 गेंद में जीतने के चाहिए 15 रन, 6 में चाहिए 15। रॉयल्स किंग को अगर ये मुकाबले को जीतना है तो 15 रन जरूर बनाने होंगे। 6 गेंद में 15 रनों की जरूरत। वो कहते हैं ना, जरूरत से ज्यादा आराम और हद से ज्यादा प्रेम इंसान को अपाहिज बना देता है। और इसीलिए तो मैं ये बार बार कहता हूं, अगर पहले प्रिपरेशन नहीं किया तो जिंदगी भर रिपेयर करते रह जाओगे।
प्रिपरेशन चाहिए भाई, और इसीलिए तो बड़े बड़े लोग कहते हैं प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट करके। असंभव कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, खाली परिकल्पनाएं है। और तो चलो, ऊपर उठने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, शब्द ही इंसान को बादशाह बना देता है। इस असंभव कार्य को संभव कौन करेगा, ये प्रश्न चिन्ह रहा है। संकट से मोचन कौन दिलाएगा अपने टीम को, ये भी प्रश्न चिन्ह रहा है। इसका जवाब क्या ढूंढ पाएगी ये ओवर में, ये प्रश्न चिन्ह रहेगा। भविष्य में बहुत कुछ होना बाकी है। अब 6 गेंद में जीतने के लिए चाहिए 15 रन। ओह क्या शॉट है, बढ़िया शॉट, प्लेड बैटर शॉट गोइंग डाउन द ग्राउंड। आया 4, ओवर की शुरुआत 4 से हुआ है। अभी भी मैच में जाने भाई, कहीं मत जाइएगा, कुछ भी हो सकता है। अरे क्रिकेट ये अनिश्चितताओं का खेल है, और इसीलिए तो बड़े बड़े लोग कहते हैं क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी करके। अंत तक आप ये कह नहीं सकते कि ये टीम जीतने वाली है, टीम हारने वाली है करके शायद। और ये देखिए, कभी खुशी कभी गम, क्रिकेट का दूसरा नाम है। क्रिकेट का दूसरा नाम कभी खुशी कभी गम। ये भावनाओं से जुड़ा हुआ खेल है। शुरुआती गेंद में 4 आया, और दूसरी गेंद थोड़ा सा दूर कर बैठे, बल्लेबाज से पहुंच से दूर थी, और अंपायर के मन में कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं इसे वाइड घोषित करने में, क्योंकि गेंद वाइड लाइन से बाहर थी। मैं मानता हूं कि एक यहाँ बड़ा सोच रचा था गेंदबाज ने, क्योंकि बल्लेबाज से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं गेंद। ओहो, इसे क्या कहेंगे आप, लाजवाब टाइमिंग के चलते गेंद स्लॉट में मिली थी, फिर भी गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर नहीं भेज पाया है। एक बड़ी विकेट यहां पर मिलती हुई गेंदबाजी टीम को। ओहो, क्या ये कैच ऑफ द मैच रहेगा, ये तो आने वाला समय तय करेगा। तब तक के लिए इंतजार कीजिए। अभी भी 4 गेंद में जीतने के लिए 10 रन चाहिए जीतने के लिए। 4 गेंद में 10 रनों की जरूरत। वाह, क्या जबरदस्त मजारा रहा है ये गेम का। देखिए, दिल की धड़कन तेजी से बढ़ने लगी, अभी हार्ट बीट अब तेजी से बढ़ने लगा है। जिसकी हार्ट बीट कमजोर हो वो ना देखेगा इस मुकाबले को, क्योंकि हमारे पास वो फैसिलिटी, वो फैकल्टी नहीं है ताकि हम आपके अच्छी तरह से परवरिश कर सके। हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। जिसकी हार्ट बीट कमजोर हो वो ना देखेगा इस मुकाबले को, कहीं हार्ट बीट रुक न जाए। क्या कमाल का मैच रहा है ये। रॉयल किंग्स बनाम इंडियन कैपिटल्स के बीच में एक कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। इस एक मैदान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एनसीसी के मैदान पर एक बड़ा मैच देखने को मिलता हुआ। SGPL साउथ गोवा प्रीमियर लीग का तीसरा पर्व का ये 5वां मैच काफी बढ़िया मैच साबित होता हुआ। दिलचस्प मोड़ पे है मुकाबला। अब 4 गेंद में जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत है रॉयल किंग्स टीम को। गेंद उछाल कर खेलना जरूर, मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर तैनात, 1 ही रन मिलेगा। अब 3 गेंद में चाहिए 9 रन। रॉयल किंग्स एक तरफ तो दूसरी तरफ है इंडियन कैपिटल्स, और तीसरी तरफ SGPL की चगमगाती हुई ट्रॉफीज जो कि देखने को मिल रही है मेरे बाएं की ओर। और ये देखिए, इलेक्ट्रिक पर आक्रमण जारी रखने की कोशिश दिखाई दी गेंदबाज के द्वारा। लेग स्टंप से काफी दूर थी गेंद और उसे वाइड घोषित किया अंपायर ने। एक अतिरिक्त रन टीम के खाते में। अब जीतने के लिए 3 गेंदों में 8 रन की जरूरत। 3 गेंदों में 8 रनों की जरूरत है। अरे क्यों कोसता है मुकद्दर को, तमाशा अभी बाकी है। थोड़ा कोशिश तो कर, तेरी सांस अभी बाकी है। जब तक सांस बाकी है तब तक कोशिशें जारी रखना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना, सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो।
कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती गुरु। बस कोशिश जारी रखना चाहिए अंत तक। यहाँ एकमात्र रन मिला है और 1 रन की मदद से पारी का रन संख्या 56। अभी भी जीतने के लिए 7 रन चाहिए, केवल 2 गेंद शेष मैच की। और ये लो, यू मिस आई हिट, तूने छोड़ा मैंने सीधे डंडे पे मारा। इस जगह डंडे पे इंडियन कैपिटल्स टीम का झंडा लहराने की कोशिश की है। क्या इंडियन कैपिटल्स टीम के झंडा यहां लहराएगा? ये गेंद तय कर सकता है। तो चलो, अभी भी ये मैच में क्या जान है? बिल्कुल नहीं। अब मात्र औपचारिकता बाकी है इस गेम में। एक गेंद में जीतने के लिए चाहिए 7 रन और जान है। देखो यहाँ पर 56 रन हुआ है। तो चलो, एक गेंद में छक्का चढ़ेंगे तो स्कोर्स आर लेवल और टोटल स्कोर 56। जीतने के लिए 7 रन, स्कोर्स लेवल करने के लिए 6 रनों की जरूरत। ध्यान में रहे, अगर मैच टाई हुआ तो एक पॉइंट जरूर बांटा जाएगा दोनों टीम के बीच में। और नए बल्लेबाज नंबर 7 पर बैटिंग करने के लिए प्रवीण को भेजा है। और गेंदबाज की क्या सोच रहेगी यहाँ, क्योंकि ओवर की आखिरी गेंद है, इस मैच की आखिरी गेंद है। अब नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर आए हुए हैं, क्या सोच रहेगी गेंदबाज की? गेंदबाज के मन में क्या चल रहा होगा? शायद इस चीज को लेकर कप्तान भी चिंतित है। मुख्तियार खादरी, काफी बेहतरीन कप्तानी। ओहो, बढ़िया गेंद। क्या मैच घटा है, ये देखिए। 5 रन से इस मुकाबले को जीत लिया है इंडियन कैपिटल्स की टीम ने। बहुत बड़ा मैच है। थैंक यू संतोष। बेहतर मुकाबला देखने को मिला। 12 गेंदों में 16 रन। तब बिल्कुल अच्छा ओवर राकेश कहर का सिर्फ 1 रन, और वही से लेकर आखिरी ओवर में अक्षय जोगड़े उन्होंने भी बहुत अच्छी किफायती गेंदबाजी की। कप्तानी को दाद देनी पड़ेगी मुख्तार कादरी को, और उसके साथ मैं ज़रूर विकेट कीपर के भी तारीफ करूंगा। बल्लेबाजी में 39 रन बनाए, उसके साथ जो एक लेग स्टंप पर एक बाहर निकलने वाली वाइड बॉल थी उसको अच्छी तरह से रोका था, नहीं तो वो गेंद भी शायद बाउंड्री लाइन पार कर सकती थी। शॉर्ट पॉइंट लेग पर